Assalamu alaikum. My name is Engineer Sayyid Ziauddin and I am a faculty member at Electrical Engineering Department, Bahria University, Karachi campus. Today's webinar is about the awareness session on Bachelor's in Electrical Engineering program. The purpose of this webinar is to aware the prospective candidates regarding the roadmap, curriculum and financial scholarships offered. Before moving forward, I would like to have our viewers the short virtual tour of Electrical Engineering Department. Before moving forward, I would like to have the viewers the short virtual tour of Electrical Engineering Department. So that was a short virtual tour of Department of Electrical Engineering. Now I would like to introduce my panelists. We have Dr. Habib Hussain Zubairi and Engineer Mohammad Khalid with us. So coming to Dr. Habib Zubairi, sir, I would like you to introduce Bahria University Karachi campus and Department of Electrical Engineering. Basically, first of all, I would like to thank for inviting me to this very good webinar, and I hope this webinar will be very beneficial for our viewers. So talking about Bahria University is federally chartered HSC recognized university, and it has 3 campuses throughout Pakistan. One is in Karachi, where we are sitting right now. One is in Islamabad, and the other one is in Lahore. Talking about Bahria University, it offers wide range of courses from engineering sciences to management sciences, social sciences, humanities, etc. So Bahria University is a project of Pakistan Navy. So our Pro Chancellor is Naval Chief, and our Chancellor is President of Pakistan. Talking about Electrical Engineering Department particularly,
Our electrical engineering department is PEC recognized, and it offer many specialization which our panelists will further update you. So this is the short intro of our university, Bahria University. Thank you very much, sir. Sir, coming to Sir Khalid, sir, how many courses and credit hours are included in the program, and what are the lab facilities in the campus? The minimum requirement is 136 credit hours for our BW program, and we have around 40 courses in our program, right? Curriculum, our curriculum is completely in line with the framework provided by HEC and PEC. And furthermore, if you talk about lab facilities, then electrical engineering department has got state of the art lab facilities to enhance learning and teaching environment. And in our department we have dedicated and shared labs. We have around 8 dedicated labs, and we have divided courses on the basis of subject areas and subject groups. So we have labs like we have high voltage engineering lab, we have generation electrical power generation lab, then we have electrical power transmission and distribution lab, we have control and instrumentation lab, telecom and DSP lab, and then we have digital design lab and analog electronics lab we have. So in total we have 8 dedicated labs in our department. अच्छा सर, थोड़े से हमारे देखने वालों के लिए बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को चूज़ करते हैं उनके लिए आफ्टर थर्ड ईयर इन थर्ड ईयर क्या स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं? यस, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वी हैव 3 स्ट्रीम्स, or we can say we have 3 specialization fields. The first one is electronics engineering, the second one is the power system engineering, and the third one is telecom engineering. So students have 3 choices, and they have to choose one from these choices. और थोड़ा सा सर इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में बताएं. आजकल AI का और साइबर सिक्योरिटी का बड़ा ट्रेंड है, तो क्या हमारे पास पूल में इलेक्टिव कोर्सेज इन से रिलेटेड मौजूद हैं? जी देखिए, एक तो हमारे पास फ्रेमवर्क है हमें जो HEC और PEC ने दिया है, लेकिन उसमें हमारे पास एक थोड़ी सी हमारे पास रूम होता है जहां हम इलेक्टिव कोर्सेज अप्लाई हैं. उन इलेक्टिव कोर्सेज में हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको हम ऑफ़र कर सकते हैं. तो यही वजह है कि हमने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में AI बेस्ड कोर्सेज भी ऑफ़र किए हैं. इलेक्टिव्स में हमने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी है, और जैसे स्मार्ट ग्रिड एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ ऑपरेशंस, उसके हवाले से भी हमने कोर्स ऑफ़र किया है. तो जितनी भी लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और AI बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो हम अपने इलेक्टिव्स कोर्सेज में ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को जो ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में उससे वो अवेयर हो, और वो फिर मार्केट में इजीली जाके जॉब ढूंढ सके और उसमें अपने कैरियर को ग्रो कर सके. ठीक है. अच्छा सर, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का भी और पेरेंट्स का भी कि कोई भी वो डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो है उनके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं उनके लिए? देखें, जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, तो हर स्ट्रीम की अलग डायमेंशंस हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पूरा उसके पास फील्ड्स हैं. मिसाल के तौर पर हम पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की बात कर लें तो उसमें हमारे पास 3 बड़ी फील्ड्स आ जाती हैं, जनरेशन की, ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की. अगर से हम जनरेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में हमारे पास बहुत पावर जनरेशन और पावर प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं हमारे पास, और ये इसकी बहुत एक नीड है मार्केट में. तो IPPs भी हैं हमारे पास. और फिर सिर्फ कन्वेंशनल पावर प्लांट्स की ही बात हम करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं हमारे पास, और हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास पावर प्लांट हैं. और ज़्यादा जोर अब इस वक्त के किस तरफ है, रिन्यूएबल की तरफ. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी हमारे पास विंड पावर पे भी बहुत काम हो रहा है, और सोलर पे तो बहुत ज़्यादा काम है, कमर्शियल लेवल पे हम कह लें, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल. और इवन ये कि जो और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मिसाल के तौर पे, तो उसका काम तो कुछ और है, लेकिन वो भी
हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो खुद भी अपनी पावर खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, पावर प्लांट्स लगा रहे होते हैं। तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा जहाँ भी पावर प्रोडक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की बात हो रही है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह फिर हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से चले जाएँ तो हमारे पास NTDC है, जहाँ पर बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हम बहुत सारी प्राइवेट भी हैं और पब्लिक सेक्टर में भी हैं। हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, हर साल के कोई अराउंड 80, 90, 100 के करीब इंजीनियर्स इंडक्ट कर रहे होते हैं, फ्रेश इंजीनियर्स, और उसमें इंजीनियर्स ग्रो कर रहे होते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हेस्को, लेस्को वगैरह, और वापडा को जो मुख्तलिफ उसमें नाम में आ गया है। तो ये है। इसके अलावा भी आप देखें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस की बात हम करें या मशीनरीज़ की बात करें, ड्राइव्स की बात करें या टूल्स की बात करें या इक्विपमेंट की बात करें, तो इन इक्विपमेंट का जहाँ भी डिज़ाइन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिन कंपनीज़ में भी, या जिनको इन ड्राइव्स को या इन डिवाइसेस को जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है इनको इसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। ये भी है। फिर इसके साथ साथ इवन ये कि सिर्फ हम पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की बात करें तो बहुत सारी ऑनलाइन हमारे पास फर्म्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका, यूरोप में या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई वो अपने पावर प्लांट है उनके पास, जनरेशन को या ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अपने नेटवर्क को इन्हेंस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, या क्या कहना चाहिए, नया डिज़ाइन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कंसल्टेंसी चाहिए होती है। तो वो अगर वो वहाँ लेते हैं तो उनको बहुत वो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स बन गई हैं, कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, और वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत एक अच्छा इनका है। तो ऐसे बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं। और इसी तरह ये तो हमने सिर्फ पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की बात की। जो दूसरी और स्ट्रीम्स हैं हमारी, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास मोबाइल कंपनीज़ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर एक उनका एक अच्छा कैरियर है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ है इसका। ओके, कमिंग बैक टू सर हबीब सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को फ़ंड करती हैं और उनके प्रोजेक्ट में सपोर्ट करती हैं, और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, हमारे पास जो है यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 फंडिंग एजेंसीज़ हैं। जैसे इग्नाइट है, ये फेडरल गवर्नमेंट की अंडर काम करती है। तो आप हमारे स्टैट्स देखें, सही है, लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, पिछले 5-6 सालों में हर साल हमारे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये फंडिंग विन करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, और टाइमली ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं। और आप स्टैट्स को देखें, मैं स्टैट्स को देखते हुए बात करता हूँ कि इग्नाइट की फंडिंग्स हो गई हैं। इसके बाद NRPU एक इदारा है HEC का, वो फंडिंग प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, उसकी फंडिंग है। और इसके अलावा PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, वो भी अपनी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ये फंडिंग्स जीतते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं और बहुत अच्छे डिलीवर करते हैं। और इसी तरह से हमारी जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस हैं जहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और सिमिलरली जो है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है हमारी के इलेक्ट्रिक के साथ, और हमारी मीटिंग्स होती हैं कैक की, तो उसके अंदर वो लोकल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताते हैं। और फिर आपको पता है कि लोकल इंडस्ट्री के लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें इंजीनियर्स चाहिए लोकल प्रॉब्लम्स को। जो मसला यहाँ पर है, ज़रूरी नहीं है कि वही मसला जो है वो अमेरिका में भी हो, US में भी हो, या किसी और कंट्री में भी हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं, हम उसको थ्रू अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी सॉल्व करते हैं। और फिर जब इंडस्ट्री में हमारा बच्चा जब जाता है तो वो ईज़िली जो वर्क एनवायरनमेंट है उससे यूज्ड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सर स्कॉलरशिप्स जो हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं देखने वालों को। अच्छा, स्कॉलरशिप का ये है कि हमारे पास बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। एक तो मेरिट स्कॉलरशिप है। मेरिट स्कॉलरशिप तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि क्लास में अपने बैच के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब जैसे जो हमारे बैच का, किसी बैच का एक अच्छा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट पोजीशन लिया है, उसको 70% स्कॉलरशिप मिलती है, 70% उसका फ़ी वेवियर हो जाता है। फिर सेकंड पोजीशन वाले को
40% एंड सिमिलरली थर्ड पोजीशन वाले को 30% तक, अप टू 30% स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये तो प्योर मेरिट पे है, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस अल्लाह ना करे ऐसी है कि वो नहीं पूरा कर सक रहे, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कॉलरशिप FAS भी हमने प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे। तो उसके अंदर ये होता है कि पहले तो स्टूडेंट आ जाए यहाँ पे, एडमिशन ले ले, एडमिशन टेस्ट का जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा करके वो एडमिशन एक दफ़ा उसका हो जाए। उसके बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर जगह होगा, ज़ाहिर है आपको मेरिट पे देना है चीज़ों को। तो उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप थ्रू आउट आपके 4 ईयर्स के लिए मिल जाती है, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक मिनिमम GPA है 2.5 वो मेंटेन रखनी होती है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है HSC का, HSC एहसास स्कॉलरशिप। तो HSC ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एहसास स्कॉलरशिप में इनरोल किया हुआ है, जिसमें से बहरिया यूनिवर्सिटी भी आती है। तो अगर कोई स्टूडेंट इधर से HSC एहसास स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है तो हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी उसके अंदर इंक्लूडेड है उन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसका क्राइटेरिया आप डेफिनेटली HSC की वेबसाइट जाके देख सकते हैं क्या है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो सर, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्पेसिफ़िकली कौन कौन सी स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं और उनके रोल क्या हैं? अच्छा, हमारे पास यहाँ बहरिया यूनिवर्सिटी में वैसे तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी सोसाइटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी हमारी 2 सोसाइटीज़ हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं। एक तो है बहरिया सोसाइटी ऑफ रोबोटिक्स BSR, और एक है बहरिया इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी BETS के नाम से। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं इनका काम ये है कि ये प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराना, और इसके अलावा प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट को प्रिपेयर करना। और ये जो सोसाइटीज़ हैं इनके अपने स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको एक फ्लेवर भी मिल रहा होता है किस तरह से आपने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है। इसी तरह से फिर वो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, और प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं। और अगेन वही स्टैट्स वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लास्ट ईयर देखें हमारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट लोकल जो कॉम्पिटिशन्स थे यूनिवर्सिटीज़ में उसमें जाके पार्टिसिपेट किया, वो कंपटीशन जीत के आए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशंस हमारे स्टूडेंट्स ने हासिल की। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने ख़ुद के प्रोजेक्ट्स, अपने ख़ुद के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कराती है। जैसे हमारे 2 फ्लैगशिप इवेंट्स हैं, जिसमें एक है गीक्स के नाम से, जो कि हमने अभी इस साल ऑर्गेनाइज़ भी कराया था, बहुत कामयाब गया था, जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो कंपटीशन होता है उसके हवाले से होता है। और सेकंड हमारा जो फ्लैगशिप इवेंट है वो है इलेक्ट्रिया, जिसके अंदर हम जो रोबोटिक कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड ही हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, खालिद थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है EE प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, उस पर काइंडली बताइएगा थोड़ा। देखें, जो PEC की जो गाइडलाइंस हैं उसी के हिसाब से हमारा है, और मिनिमम हमारे पास 60% मार्क्स हमारे रिक्वायर्ड हैं HSC में, या इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप कह लें। और चूंकि अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ तो हम फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बुनियाद पर ही एडमिशन ऑफ़र करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जिसके भी मिनिमम 60% मार्क्स है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के, और ये तो प्री इंजीनियरिंग का है। अब इसी के साथ हम देखें, अगर कंप्यूटर साइंस जिन्होंने कंप्यूटर्स के ज़रिए से पढ़ा है, इंटर में कंप्यूटर्स लिया है, तो उनको वो भी एलिजिबल होते हैं। उनको बस एक्स्ट्रा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। और अब प्री मेडिकल वाले भी जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन्हें चूँकि उन्होंने मैथ्स 1 मैथ्स 2 नहीं पढ़ा है तो वो उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और वो भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा होता है, तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें टेस्ट के लिए? देखिए, टेस्ट एक जनरल है जिसके अंदर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उन्होंने जो मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ी है, अमूमन उन्हीं के कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे होते हैं। मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स और इंग्लिश है इसके अंदर, और फिर फोर्थ वन है एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ये ECAT वगैरह की जो बुक्स हैं उससे वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, या सिंपल वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कॉन्सेप्ट हैं उसी की बुनियाद पर वो उसको पास कर सकते हैं। और अगर हम बहुत उस पर स्पेसिफिकली देखें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के 45 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर,
और फिज़िक्स से 10 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर पैनलिस्ट फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम एंड गिविंग आवर व्यूअर्स इनसाइट अबाउट द BW program. We look forward to welcome all the prospective candidates in admission of fall to 2024. थैंक यू।